Good morning to everyone. How are you all? Hope you all are doing good. Hope you all are learning. Your studies is not yet hampered in this lockdown. So we are communicating to each other after a long time. It is more than a week, I think. Actually, the weather and the internet connection didn't support. So even after a long time, it is the internet which is connecting us. Okay. So need not mind the interruptions. As we are connected here, we will carry on our studies from this very day. Very good morning. Good morning to everyone. We supposed to discuss a very short chapter today. The material means the original text I have given you long before, and hardly that would take 10 minutes to read. I'm talking about simple reading. But the matter involved in it, or the thing that Robin Klein has uh, wanted us to know, is worth talking because the poem is completely centered upon a child, and you can take yourself that child. यहाँ तो पोएम में सिंपली एक नाम हमें दिखा दिया गया है, अमेंडा. Sorry. So Amanda is talked about in the text here, but such Amanda is at each and every house. सभी घर में इस तरह के अमेंडा मिलेंगे. मतलब आप खुद को मान सकते हो वहाँ पे. So before I begin, a task for you is there. You need to write a short biography of the poet. Okay, because I don't know how long the connection will support us. So it would be better to talk about the chapter first, and about the author will be your share of task. ठीक है. तो एक छोटा सा biography before you start answering the questions of the chapter. Write a short biography of the Australian poetess. ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है रॉबिन क्लेन. एंड सी स्पेशली, जैसे कि इस पोएम से भी हमें मैटर क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा दैट सी स्पेशली राइट्स फॉर चिल्ड्रन. Okay, so before we start the text, in the colored box in your book, there is a question. So let us take the question upon us and try to answer it. Okay, so what the question says: every child, now you can consider yourself as one of the children. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. Every child. So you too may find yourself that there are many certain things, that there are many such things that you want to do, whereas your parents didn't allow you to do. Isn't it? So I'm not going to ask you to list such things here. Okay, but simply you can affirm, you can confirm the matter. आप सहमति जरूर दे सकते हो that is the thing mentioned in the text happens with you even. आप लोगों के साथ भी तो ऐसा होता होगा. There are many things that you wanted to do, that you always prefer to do, but there is someone at your home, maybe the senior, maybe the parents, maybe the grandparents, they don't allow you to do. In fact, when we remain a child, always the elders and seniors wanted to control us. हमेशा कंट्रोल इन द सेंस ऑफ करेक्शन. अब कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं वो अपना डोमिनेशन दिखाना चाहते हैं. दे वांटेड टू कंट्रोल इन द सेंस ऑफ करेक्शन, बिकॉज चाइल्डहुड ही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हम लोग जो भी कल्चर, जो भी लेसन्स, जो भी लर्निंग, जो भी डूज एंड डोंट्स डालना चाहते हैं वो एक बच्चे में डाल सकते हैं. ओके, तो मिलता है ऐसा लगभग सभी घर में ही ऐसा होगा.
isn't it? Even I am being asked to do certain things, and at places even मैं खुद भी रोका जाता हूँ, isn't it, not to do certain things. Very good morning. तो देखिए पोएम शुरू होने से पहले जो है ना, सवाल आपके लिए भी वही है. You too may feel that your freedom is curtailed. कर्टेल मतलब होता है टू रिड्यूस, कम कर देना, काट देना, छांट देना. सो एट टाइम्स आप लोगों को भी लगता है ना दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड. आपके फ्रीडम को, आपकी आज़ादी को छाट दिया गया, कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया. सो राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू. दिस विल बी अनदर टास्क. ये आपके लिए एक दूसरा सवाल है. ओके okay? Yeah, Aditya Rathore, I don't know what you are telling me. Step up, mentee quiz. I didn't get you. Anyway, so this is another task for you. So first task that may take place in your notebook. पहला काम जो आपके notebook में हो जाना है वो है a short biography about the poet Robin King, the Australian poetess. Right. The second task, answer this question. Is there anything that you want to do but your parent didn't allow you to do, or your parents don't want you to do? The another thing. So make the list of things, and that would be completely personal. Simply that may reach us, that may reach me, so that I can understand, I can know what are the things you want to do, and prefer the legal things. Okay, because there will always be objection in the illegal matters. Fine. So now let us read the poem aloud and understand what Robin Klein wants to say. And this Amanda को यहाँ पे हम एक fictional child मान सकते हैं, जो कि सभी child के लिए common हो जाएगा, common name for every children. ठीक है, every child. And there are certain figures of speech that we had worked upon. So definitely I'm going to interrogate you, I'm going to ask you about the technical devices, about the figurative term used in the text, right? तो जितना याद आएगा बताना, और else I'll be there to remind you. मैं आप लोगों को याद दिला दूंगा. चलिए राजनारायण, very good morning. Let us see the first stanza, and see it is the four lines, and the fourth line contains only name. तो क्या हमें इन चार लाइन में कोई राइम स्कीम देखने को मिल रहा है? और अमेंडा के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, इंडिकेटिव. हम किसी को बुलाते हैं तो फिर जिस तरह से नाम लेके बोलते हैं अमेंडा, अमेंडा. सो इन दैट सेंस अमेंडा इज सेड हियर, इसीलिए वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हुआ थे. तो देखिए इन ऑल द पैराग्राफ वी विल गेट द पैराग्राफ विच इज नॉट विद इन ब्रैकेट. आप देखोगे पहले पैराग्राफ में कुछ बातें बताई गई है, कुछ इंस्ट्रक्शन है या कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन दूसरा पैराग्राफ ब्रैकेट के अंदर है. तो ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब क्या है? दैट इज नॉट एग्जैक्टली सेड, वो बोला नहीं गया है, बल्कि वो हम रीडर्स के लिए वो सेटिंग, वो सीन दिखाया गया. ओके, सो लेट अस गिव इट अ गो. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So three instructions, one after the other. एक के बाद एक लगातार तीन इंस्ट्रक्शंस. तो देखो आप लोगों को लिस्ट में ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा बात अमेंडा को नहीं करने को बोला गया, बिकॉज क्वेश्चन मे कम रिलेटिंग दैट. उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. Okay, that what are the things or what are the instructions that was given to Amanda. तो पहले लाइन में क्या है? Don't bite your nails, Amanda. Don't bite your nails. And unfortunately I am also in habit of biting my nails unknowingly. I don't know, पता नहीं चलता, but my nails are not in proper shape, and I know this is not a good habit. पता है, बट अनोइंगली जैसे वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, एंड दैट अलाउज मी टू डू सो. ओके, और नेचुरली इट गोज, द नेल गोज इनटू माय माउथ. बट व्हाट इट इज सेड, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. डोंट बाइट, तो पहला इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है ना. डोंट बाइट योर नेल्स. Don't
हंच योर शोल्डर, हंच हंच जैसे हम लोग बैठते समय थोड़ा झुक के बैठते हैं, है ना, हम लोग थोड़ा स्टूप हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, सिट स्ट्रेट, एकदम सीधा, पीठ सीधा करके कंधे सीधे रखो, ये इंस्ट्रक्शन है। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, स्लॉचिंग वही झुक के बैठना। तो हंच का सेंस हम लोग वो कंधे को जो सिकुड़ के बैठते हैं इस तरह से कुछ, वो सेंस लेंगे। एंड द अदर वन स्लाउचिंग मीन्स स्टूपिंग फ्लैट, झुक के जो हम लोग रहते हैं, तो इस तरह से आप स्ट्रेट रहो, सीधा बैठो। एंड व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल चाइल्ड द इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकम्स मोर एंड मोर, isn't it? क्योंकि पेरेंट्स को ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, उनको लगता है दैट मोर देन अनोइंगली मीन्स अनफॉर्चुनेटली इट इज द फैक्ट, मोर देन द बॉयज गर्ल्स आर restricted in their physical behavioral pattern, they are instructed and restricted the more, isn't it? Unfortunately this is happening in each and every house। चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोगों का मैसेज में थोड़ा इग्नोर इसलिए कर रहा था सो दैट आई कैन गो ऑन विथ माय टॉपिक दैट इज गोइंग विद इन मी विद द हैपनिंग। फाइन, तो जुड़ जाओ सभी। और सिंपल सा टेक्स्ट है, छोटा सा टेक्स्ट है, बट इसके अंदर से हम लोग कितना सारा यदि फिगर्स ऑफ स्पीच निकाल सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ओके, एंड लास्ट डे पॉसिबली ऑन फ्राइडे आई थिंक आई आस्क्ड यू टू राइट ए स्टोरी ऑफ रेपंजल, तो जो एल्यूजन इसमें यूज हुआ था, तो उम्मीद है वो सभी आप लोगों ने रेपंजल की स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी आप लोगों ने लिखा होगा, बहुतों का फोटो आया मेरे पास ना विद द स्टोरी। सो दोज हु हैव नॉट वर्कड अपॉन दैट, आप उस पे काम करोगे तो एक फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आई सप्लाई यू अनदर टास्क, दो मिल चुका है, बस गिनना एट द एंड कितने होंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा। फाइन, सो देखो इन द फर्स्ट स्टैंजा वी गॉट थ्री इंस्ट्रक्शंस, हमें तीन इंस्ट्रक्शंस मिला, क्या क्या? डोंट बाइट द नेल, डोंट हंच योर शोल्डर, एंड डोंट सिट स्टूपिंग स्लाउचिंग। ठीक है, तो बेंड होके नहीं रहना है, कंधे को सिकुड़ के नहीं रखना है, और नाखून नहीं काटना है। सो दीज आर द थ्री इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अमेंडा, एंड चिल्ड्रन आर द थिंग who hardly follows the instruction giver, है ना? उनको हम जी भर के इंस्ट्रक्शन जितना बोल देते सब में वो हामी भरते हैं। हाँ एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐड आता था ना लाइफ बॉय वाला, लाइफ बॉय वाला ही था, कौन सा था, जिसमें मम्मी इंस्ट्रक्ट कर रही होती है ऐसा ऐसा नहीं करना, तो ये सब जब मैदान में खेलने जाओगे तो ये सब नहीं करना है, कीचड़ में नहीं जाना है, गंदा है, तो बिल्कुल नहीं करके बच्चा बोल रहा होता है। तो उसमें एक गुड इंस्ट्रक्शन भी रहता है, तो उसके लिए भी बिल्कुल नहीं। द चाइल्ड रिप्लाइज, सो दैट शोज द कॉमन चाइल्ड साइकोलॉजी, दिखाता है उनको जो करना है वो करेंगे ही, बट स्टिल इंस्ट्रक्शन वर्क्स। हमें डूज और डोंट्स तो एक बच्चे को सिखाना ही होता है ना, बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डूज एंड द डोंट्स। So it is we, the elders, who need to instruct the children. Fine. चलिए, सो तीन इंस्ट्रक्शंस पहले स्टैंजा में, द सेकंड स्टैंजा इज विद इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में देने का क्या मतलब है, ये कुछ बोला गया बात नहीं है, बट ये एक सेटिंग है, मन के अंदर चल रहा या फिर कैरेक्टर के अंदर चल रहा एक सोच जो हम रीडर्स के लिए लिखा गया है। ओके, सो व्हाट द लाइन सेज, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So who is this me here? पहले इंस्ट्रक्शन, पहले स्टैंजा में हमें पता चला हु इज इंस्ट्रक्टिंग, दो द कैरेक्टर इज नॉट नेम्ड, बट हमें पता चल रहा है ना। व्हाट डू यू थिंक, पहले स्टैंजा में जो अमेंडा को इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन दे कौन रहा है या दे कौन रही है? व्हाट यू थिंक? रिप्लाई में, क्योंकि अभी मैं पिछले 14 मिनट से आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा हूँ, तो देख लो मेरा कमेंट बॉक्स लाइव चैट सही काम कर रहा है या नहीं। So who do you think Amanda is being instructed by? Author. So we can think of the parents, Anshu Priya, as you have said, parents, and among the parents even, अब parents के रूप में घर पे बहुत सारे family members रह सकते हैं, but it is the mother जो instructions से मिलेगा, because
सबसे ज़्यादा समय एक बच्चे के साथ उनकी माँ गुजारती है, सो पॉसिबली इट मे बी द मदर हु इज इंस्ट्रक्टिंग द चाइल्ड, हु इज करेक्टिंग द चाइल्ड at each and every step. Yeah, it can also be the grandparents, but here it seems that the one who is correcting the child is possibly the mother. Okay, parents से जब हम लोग बोलेंगे तो फिर प्लूरल आ जाएगा. Anyway, if we get any such sign of singularity or plurality, we will decide it. ओके, बट एक हम लोग पूरी तरह से कंफर्म हो सकते हैं, मान के चलते हैं दैट पॉसिबली इट मे बी हिज मदर, सॉरी हर मदर. ओके, सो नाउ व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज गिवन द चाइल्ड हार्डली माइंड्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. सो द सेंटेंस विद इन ब्रैकेट shows what is going on within the child, what is going on within Amanda's mind. So what she says, there is a languid emerald sea. Languid means what? The meaning is given on the other side. आप देख सकते हो है ना, on the other side of the book, and hoping that you all have the book. Languid means relaxed, quite calm, एकदम शांत. Emerald sea, emerald is a precious stone. Emerald एक precious stone है, और यहाँ पे उस stone का sense लिया गया to indicate the color of it. Okay, so the stone is of green color, and the sea which is visualizing green, which is looking green in color. तो देखिए अब इतना एट प्रेजेंट सामने में द मदर इज इंस्ट्रक्टिंग और रेस्ट्रेटिंग द चाइल्ड, बट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द चाइल्ड्स माइंड, उनके माइंड में क्या चल रहा है? देयर इज अ लैंग्वेज, सी इज लॉस्ट इन हर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में खोई हुई है. एंड व्हाट शी थिंक्स, देयर इज अ लैंग्वेज, देयर इज अ रिलैक्स, देयर इज अ साइलेंट, स्टिल, काम एंड क्वाइट. व्हाट? एमरल्ड सी, समुद्र है, वो खुद को एक समुद्री तट पे पाती है, वेयर द सी इज कंप्लीटली साइलेंट, रिलैक्स्ड एंड ग्रीन इन कलर, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी. सोल ओनली, सिर्फ एकमात्र. सो इन दैट एंटायर ओपन स्पेस, सी, अब समुद्र जब हम लोग बोल रहे हैं तो छोटा वाटर बॉडी का तो इमेजिनेशन कर नहीं सकते, राइट? सो इन दैट ओपन स्पेस द सोल इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट मतलब होता है निवासी, द ओनली इनहैबिटेंट इज मी. सो हु इज दिस मी हियर? कौन है ये मी? Where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully, and she thinks herself to be a mermaid. Mermaid आप सभी समझ रहे हो, जल परी को हम लोग बोल सकते हैं, है ना, जो फेरी टेल्स में, वो परियों की कहानियों में हमें देखने को मिलता है. हाफ बॉडी गर्ल है, अपर पार्ट, एंड द लोअर वो मछली वाला, है ना, और वो अपने तरीके से अपने हिसाब से जहाँ मन कर रहा है वहाँ तैरते हुए जा रही है. सो मी हियर इज अमेंडा. अमेंडा खुद को मानती है ये मी. और देखिए जब इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, मतलब एक तरह से डोज मिल रहा है, हमें भी मिलता है, बट मेनी अ टाइम वी प्रोटेस्ट आवर पेरेंट्स, isn't it? We protest our parents, but the child here hardly minds. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बोलना है बोलो, let me think whatever I want, and she drifts herself. drift मतलब होता है बह जाना, चला जाना. तो वो खो गई है, चली गई कहाँ पे? तो सेकंड स्टैंजा में, और हर स्टैंजा में बच्चे का सोच हर थोड़ी देर में बदलता है, इनफैक्ट हम लोगों का भी बदलता है, isn't it? जो सामने में देखते हैं बच्चों को लगता है कि हाँ यही बनेंगे. यदि पुलिस को देखा तो उनको मन करता है पुलिस बनने का, यदि किसी डॉक्टर को देखा तो उनको मन करता है डॉक्टर बनने का, राइट? चलिए, सो what she thinks that there is a languid, relaxed emerald sea, ग्रीन कलर का समुद्र है जहाँ पे एकमात्र प्राणी वो अकेले हैं, और वो क्या है? मर्मेड है, एक जल परी है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्ट मतलब होता है टू मूव इन द वाटर, बहना, एक तरह से स्लाइडिंग करना, उसे भी ड्रिफ्ट बोलते हैं. ओके, तो मूव का सेंस है ब्लिसफुली. ब्लिस मीन्स जॉयफुली, हैप्पीली. तो वो बहुत खुश है. और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है, उनके सामने मम्मी खड़ी है और उनको डोज मिल रहा है, बट वो खुश है कि वो अलग ही दुनिया में है, अपनी ही दुनिया में है, ये सोच के वो खुश है. ओके, फाइन. सो इज द फर्स्ट स्टैंजा क्लियर टू यू? स्टैंजा में इंस्ट्रक्शन है पहले वाले में, और दूसरे वाले में उनका सोच है. फिर से अब देखो, तीसरे में इंस्ट्रक्शन मिलेगा, फिर चौथे में द गर्ल ड्रिफ्ट्स इन हिज ओन थॉट, इन हिज ओन वर्ल्ड, इन हिज ओन यूटोपिया, अपने वर्ल्ड में वो चली जाती है.
तो अगला इंस्ट्रक्शन देखो अब क्या है, या रेस्ट्रिक्शन है या सवाल है, वी विल गेट टू नो। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? डिड यू tidy your room, Amanda? So there are multiple questions. Questions है बहुत सारा. I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So again three instructions. और थ्री इंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे, ये एक तरह से स्कॉल्डिंग है, डांट रहा है ना, उनको डांट सुनना पड़ा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? तो ये सवाल है, इंटेरोगेशन इन द फॉर्म ऑफ स्कॉल्डिंग। होमवर्क पूरा किया, अब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? हम लोग भी बोल रहे होते हैं ना अपने घर पे, यदि छोटे भाई बहन होते हैं तो, राइट, या फिर छोटों के लिए उनके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, डिड यू टाइडी योर रूम? तो तुम्हें बताया गया था अपना रूम का ख्याल खुद रखना है, साफ खुद रखना है ना, क्या तुमने उसे साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मुझे लगता है मैंने तुम्हें जूते साफ करने को बोले थे, किया? अब तक नहीं किया, क्या करते रहती हो? तो डांट पड़ रहा है अमेंडा को। तीन और है, होमवर्क पूरा किया, रूम साफ किया, जूते साफ करे अपने। बट अमेंडा का सोच कहाँ पे है, अगले स्टैंडर्ड में देखो। अब वो क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है? ऑर्फन, नाउ सी थिंग्स, आई एम एन ऑर्फन roaming the street. Yeah, I remember Suraj. Yeah, so yeah, follow the stanza. I asked you, I put a question. What orphan? Tell me the meaning of orphan. Orphan का meaning बताओगे? ठीक है, till I read the paragraph. Exactly, चलो meaning आ गया. I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my husked bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो देखिए यहाँ पे तीनों rhymed है, street, feet and sweet, all are rhyming. It's three line, the stanza is rhyming. Again, so अब वो क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ, पेरेंट्स लेस, है ना, विद पेरेंट्स नहीं, विदाउट पेरेंट्स, एग्जैक्टली, हाँ। सो आई एम एन ऑर्फन बिकॉज हैविंग सच पेरेंट्स मीन्स नथिंग। यदि बच्चे को लगातार डांट फटकार सुनने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आ रहा है, क्या ये भगवान बनाए ही क्यों ये पेरेंट्स, है ना। और बच्चे जिसे पसंद करते हैं, मान लो मम्मी पापा में उनका एक फेवरेट रहता है और एक स्ट्रिक्ट उनको रोकने वाला रहता है, और ऐसा होना भी चाहिए। बट टू द चाइल्ड, बच्चे के लिए जो उनको ज़्यादा दुलार प्यार करते वो पसंदीदा है, और जो नहीं करते वो भगवान ने इसे बनाया ही क्यों, है ना। सिंपली यूजलेस, गुड फॉर नथिंग, दिस इज वॉट a child thinks. So now the child is again drifted, is lost in her thought, and now this time what is she thinking? वो क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन है वो, अब उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, एंड शी इज रोमिंग द स्ट्रीट। रोम मीन्स टू मूव हियर एंड देयर एमलेसली, बिना कोई मकसद उद्देश्य के इधर उधर मूव करना, दैट्स रोमिंग। सो रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट। पैटर्न मतलब होता है एक तरह का डिजाइन या पैटर्न बनाना। अगेन, सो बेयर फीट मीन्स बिना जूते चप्पल के, नंगे पाँव बोल सकते हो, बेयर फीट खाली पाँव। ओके, सो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट। हस्ट मतलब होता है साइलेंट। तो यदि हम लोग जूता चप्पल नहीं पहनेंगे तो अपने फीट से, है ना, अपने पाँव के निचले हिस्से से आवाज़ तो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, और वो भी जब हम लोग धूल पे चल रहे हो तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। या फिर स्ट्रीट पे चल रहे हो खाली पाँव और पाँव में धूल लगा हुआ है, सो जनरली दैट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। सो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। तो पाँव में धूल लगा, वी कैन इमेजिन द कंडीशन, पाँव में धूल लगा हुआ है और वो स्ट्रीट पे चल रही है, तो हमारे पाँव का छाप तो स्ट्रीट पे पड़ेगा ना। वही बोलती है कि मैं इस तरह से पैटर्न बनाते हुए स्ट्रीट पे रोम करे, एमलेसली इधर उधर घूम रही है, भटक रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, she is enjoying the silence because there is no one to restrict her, there is no one to guide her, to correct her, or to demand something from her, and thus she is enjoying the loneliness, she is enjoying the silence. What she said, the silence is golden, the freedom is sweet. So this freedom she likes, she enjoys the freedom and she calls it sweet. कितना अच्छा है ये फ्रीडम, कितना गोल्डन लाइफ वो जी रही है।
है ना? तो ये थोड़े देर का आता है, वी कैनॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट आवर पेरेंट्स। बट कभी कभी माइंड में आ जाता है, जब पेरेंट्स डांट फटकार रहे होते हैं, देन समटाइम्स इट कम्स टू आवर माइंड। नहीं आना चाहिए, बट स्टिल टू अ चाइल्ड माइंड, क्योंकि वो मैच्योर उतने होते नहीं है, तो उनके माइंड में आ जाता है ना? और कभी कभी बच्चे गुस्से में घर से भी निकल जाते हैं। सो दे सिंपली थिंक that having such parent means nothing, and she was enjoying द लोनलीनेस। वो अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रही है, और थोड़ी देर का एंजॉयमेंट होगा ना, जब तक भूख ना लगे, क्योंकि जैसे ही भूख लगेंगे फिर आएगा याद पेरेंट्स का, कि कोई ला के देने वाला होता, कोई पकाने वाला होता, कोई खिलाने वाला होता। तो ये एक चाइल्डिश सोच दिखाया गया है, दैट द चाइल्ड इज एंजॉयिंग हर लोनलीनेस। वो अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रही है ऑन द स्ट्रीट्स। तो दिस वाज द सेकंड थॉट। तो अमेंडा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पेरेंट, उसकी मम्मी डांट रही है और अमेंडा अपने सोच में खोई हुई है। दिस इज व्हाट द इंटरेक्शन, द कॉन्वर्सेशन गोज ऑन। इस तरह से कॉन्वर्सेशन जैसा बनाया गया, बट एक्चुअली द गर्ल कैरेक्टर, द baby character is not speaking anything. She is simply lost in her thought. See what the further stanza says. Don't eat that chocolate, Amanda. फिर से डांट पड़ा। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne. Acne पढ़ेंगे इसे, ACNE, acne, है ना? वो पिंपल्स जैसा जो आ जाता है मुंह से, चेहरे पे। So remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Yeah, pimples can be said. So will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो वहाँ पे भी उनको कुछ कर्टसीज, कुछ मैनर्स सिखाए जा रहे हैं, है ना? और गुस्सा भी दिखाया जा रहा है, मतलब बोलने वाले का गुस्सा आपको मेरे बातों से भी तो पता चल रहा होगा। द वे आई रेड द मैटर, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। और डोंट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर दिख रहा है ना? सो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने। देखो अपने पिंपल्स को, चॉकलेट खा खा के पूरे चेहरे को पिंपल से भर लिया, कुछ इस अंदाज में बोल रहे हो। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा एंड विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। क्योंकि जब नहीं नजर मिलाते, नहीं देखते हैं, तो लगता है कि बच्चा इग्नोर कर रहा है ना? और कभी कभी बड़ों से ये इग्नोरेंस भी सहा नहीं जाता, वो ऐसे कैसे मुझे इग्नोर कर देगी, मैं बोल रहा हूँ, सुनना चाहिए उसे मेरा, वो इग्नोर कैसे कर देगी, है ना? तो एक तरह से धमकी दे रही है, दैट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, लुक एट माय फेस, लुक एट मी, ओके प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो देखिए हर सेंटेंस में नाम लेके अमेंडा 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 करके बोला जा रहा है, ठीक है? सो स्पेसिफाइंग द गर्ल जो सुन नहीं रही है, शायद उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर, डांट तो रही है, क्लियर हो रहा है। अब अगले स्टैंजा में फिर लड़की कहाँ चली जाती है, कहाँ खो जाती है, वो देखो। एंड हियर द टेक्निकल डिवाइस एल्यूजन इज यूज्ड, ALLUSION। आपके फिगर्स ऑफ स्पीच के लिस्ट में ये एक टर्म होगा, एंड वी माइट हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। आई एम श्योर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। यदि आपको याद नहीं होगा तो पिछला वीडियो या फिर आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, तो वो आपको जरूर देखना है। और मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया गया था कि ये एक एल्यूजन है, और एल्यूजन में होता क्या है, क्योंकि ये एक वर्ड में ही पूरी एक कहानी है, तो पूरा कहानी नहीं बता के अमेंडा ने रैपुंजल की कहानी पढ़ी होगी, है ना? तो अब वो खुद को क्या रैपुंजल समझती है। तो हम में से जिनको भी, जो भी यहाँ पे जुड़े हुए मुझे सुन रहे हो, यदि आपको रैपुंजल की कहानी नहीं मालूम है, तो फिर आपको ये अजीब सा लगेगा कि रैपुंजल से वो क्यों, मतलब कंपेयर करके वो बताना क्या चाहती है, राइट? बट इफ यू नो, यू कैन डायरेक्टली रिलेट इट, आप सीधा सीधे रिलेट कर सकते हो, है ना? So, what she thinks now? I am Rapunzel. I have not a care. I have not a care means I don't care. I don't have any care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. तो देखिए उनको क्योंकि अकेलापन पसंद है, और अकेलापन इसलिए पसंद है क्योंकि पेरेंट्स डांट रहे हैं, है ना? तो रैपुंजल की कहानी में आपको यही मिलेगा, दैट द ब्यूटीफुल गर्ल Rapunzel, born to a good family, normal family, was later on taken by a witch. एक विच ने रेपुंजल को ले लिया था, और फिर उसे एक टावर जैसे, जिसमें कोई चढ़ने का सीढ़ी नहीं था, उस टावर पे ऊपर, टावर पे रेपुंजल को रख दिया।
and she has the beautiful long golden hair. क्योंकि बचपन से बाल उनके काटे नहीं थे और एक्सेस ग्रोथ था उनके बालों में, तो फिर उस विच ने पूरी दुनिया से अलग रैपुंजेल को वहां पे रखा उस टावर पे। और चढ़ने का कोई सीढ़ी नहीं था, तो जब भी उस विच को चढ़ना होता था तो रैपुंजेल को बोलती थी कि अपने बालों को, अपने गोल्डन हेयर को नीचे गिराओ, और वो रस्सी जैसा पकड़ के बालों को पकड़ के फिर चढ़ जाती थी। ओके, सो दैट इज द स्टोरी। और बहुत ने वो कहानी लिखा भी है, जिन्होंने लिखा है मेरे पास आया बहुत सारा पिक, बहुत सारा फोटो, तो जिन्होंने वो लिखा है उनको तो पता होगा एग्जैक्टली, राइट। सो द स्टोरी ऑफ रैपुंजेल वाज हर्ड बाय हर, तो उन्होंने सुना वो कहानी, रैपुंजेल की कहानी, तो इसलिए अब वो क्या सोचती है, अब वो खुद को रैपुंजेल मानती है। ठीक है, तो जल्दी से एंड करेंगे, ये बाहर का साउंड थोड़ा एक्टिवेट हो गया है, थोड़ा डिस्टर्ब होगा आप लोगों को। ओके, तो कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ही है, अभी खत्म हो जाएगा। So I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. So life in a tower का क्या सेंस है? She was confined in a tower by the witch. ये मैं ओरिजिनल रैपुंजेल की कहानी, वो परियों की कहानी, बच्चों वाला कहानी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो सी वॉज कन्फाइंड इन अ टावर, एक टावर में उनको कन्फाइन कर दिया गया था, एंड नो वन वॉज अलाउड टू मीट हर, सी वॉज कम्प्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। बाहर की दुनिया से पूरा अलग, उनको बचपन से कभी किसी से वो मिली नहीं, है ना। जब जन्म हुआ तो पेरेंट्स, क्योंकि एक कंडीशन थे, वो विच आके उसे लेके गई। तो कुछ अलग अलग सोर्सेस में कहानी आपको डिफरेंट मिल जाएगा, बट द कॉमन सिमिलर पॉइंट इज वो एक टावर पे रहती थी अकेले, और जब उस विच को, उस डायन को जाना होता था, तो वो नीचे से आवाज लगाती थी कि अपने गोल्डन हेयर को नीचे फेंको, और उसे रस्सी जैसा पकड़ के वो चढ़ती थी। तो लेटर ऑन ये देख के एक प्रिंस भी गया एक दिन, है ना। फिर आगे की कहानी है, लंबी कहानी है, अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट इज योर अनदर टास्क, वो आपका दूसरा काम है, अगला काम है। जिन्होंने कहानी लिखा है दे नीड नॉट वर्क, और एल्स फ्रेम ए शॉर्ट, राइट ए शॉर्ट स्टोरी, एक पेज का आप लिखना, पूरा पढ़ जरूर लो, समझ जरूर लो, फिर जो मेन मुद्दे की बात है आप वो लिख लो, है ना। फिर एक प्रिंस से उनकी शादी भी होती है एट द एंड, और उनका चोटी भी काट दिया जाता है बाय द विच, जब उनको पता चलता है असलियत। ओके, तो अब वो क्या सोच रही है, आई एम रैपुंजेल, मैं वही वो रैपुंजेल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, जिसको दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। लाइफ इन ए टावर, टावर पे जो लाइफ, उनको क्योंकि उस टावर पे रख दिया था, सो लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मतलब होता है एकदम काम, क्वाइट, शांत, क्योंकि वहां कोई आता जाता नहीं, तो शांत रहेगा ही। एंड रेयर, ऐसा लाइफ शायद ही किसी को मिलता है, रेयर मीन्स स्केर्स, शायद ही, किंचित। Okay, so life in a tower is tranquil and rare. So now the girl is thinking about that place कि काश मैं रैपुंजेल होती, मैं उस टावर पे अकेले रहती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, डांटने वाली मम्मी तो होती ही नहीं। Okay, I will certainly never let down my bright hair. तो वो क्या बोलते हैं, उनका जो गोल्डन हेयर था, क्योंकि वो विच जो थी, क्योंकि विच ही उस बच्ची की माँ जैसी है, क्योंकि बचपन में जब जन्म हुआ तभी रैपुंजेल को लेके आ गई वो विच, तो उनको बड़ा किया उस विच ने ही, उस डायन ने ही, तो विच को ही माँ बोलती थी। बट अल्टीमेटली है तो वो एक इविल कैरेक्टर, और यहाँ पे पेरेंट्स जो बच्चे को डांट रहे होते हैं, वो पेरेंट्स एक इविल कैरेक्टर बन जाते हैं बच्चे के लिए, है। तो इसीलिए वो क्या बोलती है कि मैं उस टावर पे वो कामनेस, लोनलीनेस को एंजॉय करेंगे, एंड आई विल नेवर लेट डाउन माय वाइट हेयर। ओके, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। तो मैं अपने बालों को नीचे कभी नहीं करूंगी, ताकि कोई उसे रस्सी जैसा उसे यूज करके चढ़ के ऊपर आ सके। आई विल एंजॉय माय लोनलीनेस, वो अकेलेपन को एंजॉय करना चाहती है ना, क्योंकि पेरेंट्स के साथ रहने में अब बच्चे को परेशानी लग रही है कि पेरेंट्स डांट देते हैं, करेक्शन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको लगता है कि मेरा आज़ादी छीन दिया गया मेरे से। ओके, सो द फाइनल स्टैंजा देखिए, स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमेंडा, SULKING, सर्क, सर्क पढ़ेंगे, विच मीन्स अनोयंस, बैड टेम्पर, वो जल्दी गुस्सा आ जाने वाला नेचर, या फिर वो गुस्सा दिखाना, डिसअपॉइंटमेंट दिखाना। सो स्टॉप दैट, तो माँ इतना कुछ बोल रही है लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, और जो अटेंशन माँ को नहीं मिल रहा है, अटेंशन जो नहीं मिल रहा है, इसके वजह से और भी उनको गुस्सा आएगा।
जब हम किसी को डांटते हैं और उस पर डांट का फर्क ना पड़े, तो और हमें थोड़ा चिढ़ होता है कि फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, पड़ना चाहिए था फर्क, right? So that is the exact reaction there. Stop that sulking at once, Amanda. अब SULK मीनिंग नहीं दिया हुआ है, आप लिख सकते हो SULK. sulk is the root word which means annoyance, disappointment या bad temper, bad mood, ये बोल सकते हैं. You are always so moody, Amanda. हमेशा मूडी रहती हो, हमेशा मूड नहीं रहते, बात को सुनती नहीं है, ध्यान नहीं देते हो. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Nagging, nag मतलब होता है harass करना, परेशान करना, trouble करना, है ना. तो अगेन ये एक कॉमन फैक्टर है ना. बच्चे को हम वैसा कंडीशन देते हैं, बच्चे को मारते पीटते हैं, और फिर एक ऊपर इम्पोजिशन लगा देते हैं कि रोना नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम मुंह बंद चुप. होता है ऐसा, है ना. एक तो बच्चे को मार रहे हैं, जाहिर सी बात है रोना तो आएगा, फिर हम लोग ऊपर से एक दूसरा ऑर्डर डाल देते हैं, रोना बिल्कुल नहीं, एकदम मुंह बंद. तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक तो पूरा कंडीशन दे रहे हो रोने का, और फिर बोलते हो रोना नहीं है, तो क्या करें. करेक्ट. तो यदि बच्चा रो रहा होता है तो फिर और ज्यादा गुस्सा आता है, और यदि हम लोग कुछ कर रहे हैं, डांट रहे हैं, रो नहीं रहा या रिएक्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, है ना. जब डांट रहे हैं तो उसको कुछ तो करना चाहिए. तो सिचुएशन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, क्या करे क्या ना करे, बच्चा कंफ्यूज हो रहता है ना, ऐसे कंडीशंस में. सो एनीवन वुड थिंक, एक तरफ तो बच्चे को लग रहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, और फिर दूसरों के सामने मुझे अच्छा भी बिहेव करना है, जैसे घर में सब कुछ ठीक ठाक है. So this is a confusing situation, a situation of dilemma for a child. तो मम्मी बोलती है यू आर ऑलवेज सो मूडी, हमेशा मूड में ही रहते हो अमांडा. एनीवन वुड थिंक दैट आई हरास एट यू, आई नैग्ड एट यू अमांडा. तो किसी को भी लगेगा कि मैं हमेशा नैगिंग, परेशान करते हो, तुम्हारा फॉल्ट ढूंढते रहते हो. तो कम से कम थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट करो, कुछ तो करो, सुन लो, समझ लो. और यदि बाहर वाले घर पे हैं तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, ऐसा तो बिहेव करना ज़रूरी होता ही है. मतलब सभी को अपने अपने लाइफ में एक्टिंग करना होता है, okay, irrespective of the situation or the condition they are in. तो द अनदर इंस्ट्रक्शन अभी इस स्टैंजा में एक तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं है, एक तरह से अमेंडा के नेचर को यहाँ पे दिखाएगा कि हमेशा मूडी में ही रहती, मूड में ही रहती है, राइट. और ऐसा रिएक्ट करती है जैसे बहुत घर वाले नैग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं. सो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है विच इज टू बी फॉलोड, जो फॉलो किया जाना चाहिए पेरेंट्स के अनुसार, घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उनको, isn't it? And when it comes to a girl child, the number of instruction gets added few more. ना, क्योंकि थोड़ा पेरेंट्स उनके लिए ये हो सकता है, मैं दूसरी तरह से सोचूं तो ज़्यादा केयरिंग होते हैं, इसलिए उनके लिए ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस रहता है. कैन बी, ये भी हो सकता है. तो चलिए, हाउ मेनी स्टैंडर्स वी कम टू नो, 3 जगह हमें ऐसा मिला जहाँ पे अमेंडा अपने ख्यालों में खोई हुई है. एंड 4 स्टैंडर्स ऑफ 1 2 3 4 5, हाँ 7 स्टैंडर्स हैं. सो मदर इज इंस्ट्रक्टिंग इन द 4 स्टैंडर्स, और अल्टरनेटिव स्टैंडर्स में चल रही है डिस्कशन. And Amanda is lost in, after each and every stanza we find the sentence within bracket that indicates, that shows that Amanda is lost in her own dream, है ना, वो कहीं पे खोई हुई है. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से इन शॉर्ट, 5 मिनट में चैप्टर. ठीक है, 3 सीक्वेंस में अमेंडा का ओपिनियन. सबसे पहले अमेंडा क्या सोचती है अपने बारे में, जब मम्मी उनको नाखून को लेके बोल रही होती है, कंधे को लेके, उनके स्लाउचिंग को लेके बोल रही होती है. सो व्हाट डिड अमेंडा थिंक हरसेल्फ टू बी, दैट सी इज द ओनली क्रिएचर इन द एंटायर ग्रीन एमरल्ड सी. एक ही क्रिएचर है, और वो क्या है, मरमेड है. तो पहले वो खुद को मरमेड मानती है ना. एंड शी इज एंजॉइंग द लोनलीनेस. सेकेंड थॉट में वो खुद को एक ऑर्फन चाइल्ड जैसा समझती है, who is enjoying the walk on the street where there is no one to restrict, or where there is no one to impose anything upon her. कुछ उन पे लादा थोपा नहीं जा रहा, कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, कोई करेक्ट नहीं कर रहा. ओके, so first is she thinks herself to be a mermaid. Second, she thinks herself to be an orphan. Third,
She thinks herself to be Rapunzel, द ब्राइट हेयर्ड गोल्डन हेयर्ड रैपुंजल। और वो बोलती है कि मैं उस टावर पे किसी के लिए भी अपना बाल नीचे नहीं फेंकूंगी तो कोई ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, एंड शी विल एंजॉय हर लोनलीनेस। तो ये तीन प्लेसेस अमेंडा की तरफ से इन अ सीक्वेंस। अब माँ की तरफ से क्या था, पहले स्टैंजा में नाखून नहीं काटना है ना, शोल्डर को सिकुड़ के नहीं रहना है, पीठ को स्ट्रेट करके बैठना है, एकदम ढंग से बैठो, ढंग से चलो, ढंग से खाओ, ये सब इंस्ट्रक्शन मिलता है ना। फिर दूसरे वाले में होमवर्क्स को लेके, हैव यू डन योर होमवर्क, आई आस्क्ड यू टू टाइडी टू क्लीन, टाइडी मतलब होता है क्लीन, आई आस्क्ड यू टू क्लीन योर रूम, डिड यू डू दैट, आई आस्क्ड यू टू क्लीन योर शूज, डिड यू डू दैट। ये सब इंस्ट्रक्शंस उनके लिए फ्रॉम द मदर, है ना। और जब ध्यान नहीं देते हैं तो ऊपर से और उनको डोज मिलता है। बोला था चॉकलेट नहीं खाने को, देखो कितने एक्ने, कितने पिंपल्स निकल आए हैं चेहरे पे, है ना, थोड़ा तो इसका ख्याल कर लो। एंड लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, ये उनका ओपिनियन। तो उनके तरफ ना देखा जाए तो थोड़ा और चिढ़ होता है। एंड फाइनली लास्ट स्टैंजा में कि ऐसा बिहेव करती हो जैसे लगता है कि तुम्हें बहुत हरास टॉर्चर किया जा रहा है, नैगिंग किया जा रहा है ना। सो डोंट एवर डू दैट एंड डोंट रिमेन सो मूडी ऑल द टाइम। हमेशा मूड में ही रहते हो तो ऐसा नहीं होना, तो गुस्से में अनॉयड डिसअपॉइंटेड नहीं रहना, थोड़ा चेयरफुल रहो, थोड़ा खुश रहो। Okay, so that is what the poem is all about. There are a number of questions. I have went, I have gone through the questions, and I didn't find it tough. But I want you to write that in a notebook. तो देखिए तीन चार काम हमें मिला। पहला क्या, what are the things that you want to do and your parents restrict you। इसका आप एक लिस्ट बना लोगे दो तीन चीज़ों का, है ना, जो आपको लगे लगे कि हाँ दिखाया जाना चाहिए, किसी को बोलना चाहिए, तो फिर मुझे भेज सकते हो। बहुत ज़्यादा मैं इस मामले में लेके स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा, क्योंकि हो सकता है वो आपका एकदम सीरियस पर्सनल इश्यूज है, मैटर है जो आप किसी से शेयर ना करना चाहो, है ना। बट इफ़ इट इज़ लीगल और इलीगल वो आप जस्टिफाई कर लेना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, या माही, वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई एम फाइन, थैंक यू। चलिए सेकंड टास्क, आई आस्क यू टू राइट द स्टोरी ऑफ रैपुंजल। वो आप रैपुंजल की छोटी कहानी है वो आप लिख लोगे, हाँ, और ऑथर के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो आप तैयार कर लोगे बिफोर वी गो फॉर द एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये तीन काम, उसके बाद आता है एक्सरसाइज। और क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इफ आई थिंक द मैटर इज टू बी डिस्कस्ड आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज। अब चैप्टर में कहीं नहीं आया, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू यू नो दिस, कैसे पता चलेगा। तो डिस्कशन क्या लग रहा है, लंबा हो जाएगा, बिकॉज आपको कोई ना कोई एक लॉजिक, एक पॉइंट देना पड़ेगा। यदि आप बोल रहे हो आई थिंक अमेंडा इज 5 years ओल्ड, हाउ डू यू गेट टू नो दैट। ओके, तो एक तो पॉइंट है कि बच्ची खुद से कुछ नहीं करना चाह रही है, हर बात में मम्मी को रोकना टोकना पड़ रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा मैच्योर तो नहीं है, राइट। एग्जैक्टली, एक्ने एक पर्टिकुलर एज में पिंपल्स वगैरह चेहरे पे आता है, मतलब जरूरी नहीं कि एक फिक्स एज है कि हाँ बच्ची जब 9 साल की हो जाए तभी ऐसा आएगा, या 12 की हो जाए तभी ऐसा आएगा। बट एक रफ कैलकुलेशन है, वो 8 10 12 के एज में ऐसा होता है, एक्ने से आप अंदाजा लगा सकते हो। और वो बहुत ही ज्यादा फैंसीफुल है, ख्यालों में खोई रहती है ना। तो एग्जैक्टली बहुत छोटी भी नहीं है लेकिन बहुत मैच्योर भी नहीं है। तो आप अपने आपको भी ले सकते हो, या खुद से 1 2 साल छोटे 7 8 क्लास के स्टूडेंट्स को आप एक एज ग्रुप में मान सकते हो कि वैसा होगा। बट गिव सम पॉइंट इन फेवर ऑफ दैट, ठीक है, आप फेवर में एक दो पॉइंट बताना। हाउ डू सॉरी हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, ये तो हमने डिस्कस किया। यू कैन कॉल, क्योंकि एक सिंगुलर है तो पेरेंट्स बोलेंगे तो प्लूरल आ जाएगा, मम्मी भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, तो ज्यादातर चांस, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ वोट तो मम्मी की तरफ जाएगा ना। सो यू कैन मार्क हर मदर। Why are stanza 2, 4 and 6 given in parenthesis? Parenthesis, तो देखिए parenthetical मैं अक्सर क्लास में ये वर्ड टर्म यूज किया करता हूँ। Parenthetical, parenthesis, this is the additional information given within bracket। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट वाले को हटा भी देंगे तो मैटर मदर का इंस्ट्रक्शन वो पूरा क्लियर हो जाएगा।
ओके, तो आपको क्या क्यों लग रहा है ऐसा कि तीन स्टैंजा में वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट में क्यों दिया गया है? बिकॉज दैट इज नॉट द कंटिन्यूएशन और द रिप्लाई ऑफ द क्वेश्चन। वो माँ के सवालों का जवाब नहीं है, माँ के इंस्ट्रक्शन का या फिर डांट का रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं है। वो एक बस सेटिंग है जो अमेंडा कैरेक्टर के माइंड में चल रहा है और हम सभी रीडर्स के लिए वो लिखा गया है। ओके, so that is the extra information, the addition information which is going on in the character's mind and is written within bracket for us to understand the happening. तो अमेंडा के माइंड में क्या चल रही है तो पता नहीं चलेगा। Okay, number 4 says who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? सभी में first person pronoun आया है I. I am Rapunzel. I am orphan. ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जब आई है तो आई अमेंडा के लिए है। सो हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 and 6? अमेंडा इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 and 6. Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5 and 7? इसका आंसर तो हमें मिला। Do you think the speaker means Amanda is listening to another speaker? Not at all, क्योंकि बातों का ना वो रिएक्ट कर रही है, ना वो रिस्पॉन्स दे रही है, ना वो झगड़ रही है, कुछ नहीं। वो बस जो बोलना है बोलो, वो अपने ख्यालों में खोई हुई। सो द कैरेक्टर मीन्स द अमेंडा इज नॉट लिसनिंग टू अनदर स्पीकर। ओके, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? पता चला what could Amanda do? अब एक mermaid क्या करेगा? Means she considered herself to be all alone, the only inhabitant, isn't it? So being a mermaid, she can enjoy the aquatic life. She can slide anywhere. She can swim or drift anywhere, isn't it? In the entire world of sea, where there will be no one to instruct, to interrupt, or to disturb her, to point out her. So you need to frame the material according to your own choice. आप बताओगे using your own words, but I'll be taking care of the grammatical mistakes committed. I'll be looking after the grammar or the way of framing sentences. Is Amanda an orphan? Is she actually? वो एक जगह पे सोचती है, but she is not an orphan because the mother is guiding her. Why does she say so? She considers, she thinks that mother is so strict, better not to have her. And thus she considered herself to be all alone, orphan, and roaming in the streets, aimlessly, wherever she want to. Okay, so she is not actually an orphan, but she thinks herself to be at a place. Do you know the story of Rapunzel? Do you know? If you don't know, you need to know. Why does she want to be a Rapunzel? So that she can enjoy her loneliness upon the tower, on the tower, and she will allow no one to get on the tower because she is not going to throw the golden hair down for anyone. किसी के लिए वो अपने बालों को नीचे फेंकने वाली नहीं है। तो अल्टीमेटली सभी बात मिला के एक ही आता है, वो अकेले रहना चाहती है ना। 100 बात की एक बात। Why does the girl why does the girl earn for sorry what does the girl earn for? earn मतलब होता है to have a deep desire, crave, चाहना। तो क्या चाहती है वो? लोनलीनेस, अकेलापन, है ना, फ्रीडम, आजादी, इन सभी चीजों से। What does this poem tell you about Amanda? So this talks about the girl psychology, a child psychology at a particular age, जहाँ पे हमें अपने पेरेंट्स का इंटरप्शन हमें लगता है कि हमारा फ्रीडम छीना जा रहा है। ओके, सो दिस हैपेंस टू एवरीवन एट ए पर्टिकुलर एज। एक समय में होता है बहुतों के साथ, जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को इंटरप्शन मानते हैं। We all consider at a particular age because we have our own world to drift in, we have our own world to get lost into. And if our parents or anyone from our house interrupts, involves into the matter, we find that something troublesome. So this is a common psychological issue. Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? तो माँ को ऐसा लग रहा है whereas Amanda minds for nothing, वो तो अपने ख्यालों में खोई हुई है। So you can answer it in no। आप no में आंसर दे सकते हो। यदि आप yes में लिख रहे हो, I will definitely accept that। मैं आपका yes या आपका no दोनों ही स्वीकार करूंगा, बस मुझे उसके लिए वैलिड एक दो पॉइंट्स चाहिए। That's it। तो चलिए, there we end the chapter and question answers will be homework to you, that will be a task for you। So do write that down in the notebook positively
एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स क्वेरीज या लग रहा है कि वर्ड नहीं मिल पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. सो यू नीड टू गो थ्रू द टेक्स्ट वन मोर टाइम, एक मॉडल रीडिंग दे देना, एक दो बार जरूरत पड़े और पढ़ लेना, है ना. छोटा सा टेक्स्ट है, पढ़ने में तो 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा. एंड डू राइट द एक्सरसाइजेस. ठीक है, रुकते हैं अभी. 10 मिनट है आपके अगले क्लास शुरू होने में. सो प्रिपेयर योर सेल्फ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर अपने तरीके से अपने दूसरे सब्जेक्ट के वर्ल्ड में खो जाना है. ये तो मैं आपको इमेजिनेटिव वर्ल्ड में लेके गया था, है ना. So from the world of imagination, now you need to come to the world of reality, because if there is something scientific or mathematical, you need to be very much logical. Okay, क्या बोल रहे इन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट ही पूछना चाह रहे हो, सही वर्ड. एम्बैंकमेंट का एक सेंस हम लोग तटीय ले सकते हैं, एट द एंड ऑफ, एट द साइड ऑफ. ओके, बैंक जैसे तट का सेंस होता है, सो एम्बैंकमेंट एक वैसे तो यहाँ पे नाउन का सेंस लग रहा है. यदि आप पूरा सेंटेंस दोगे तो मैं समझ पाऊंगा, बुक से है. या फिर एम्बैरस यदि पूछना चाह रहे हो तो एम्बैरस मतलब होता है हरास करना, तंग करना, परेशान करना. ओके, चलिए ठीक है. इफ योर वर्ड इज करेक्ट, और पूछ लेना कौन अंकुर हो क्या, यू कैन टेक्स्ट मी डिफरेंटली. एम्बैंकमेंट ही सही वर्ड है या एम्बैरसमेंट, यदि पूछना चाह रहे हो. चलिए रुकते हैं अभी. थैंक यू, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.